Hello everyone and welcome back to our YouTube channel that is Anju Maths Classes. I hope you all are doing great and your preparation is going perfectly well. Today we are going to solve the next top 10 most important questions of the average chapter. The same type of question that are repeatedly asked in every competitive exams. In the previous class, we discussed the concept and basic of average, and many of you loved that video. So now it's time to boost our speed and accuracy with the most expected exam oriented questions. In this session, we will solve every question with smart tricks and shortcuts. We will focus on speed techniques and minimum calculation. And most importantly, we will build full exam confidence. So get ready with your notebook and pen and don't skip any question because even a small trick can help you score full marks in exams. If you are new to the channel, make sure to like the video, subscribe and press the bell icon so you never miss such power packed session. Let's begin the class and step forward towards success. Let's crack the average chapter together. So now our first problem is the average price of three items of furniture is 16,020 rupees. If their prices are in the ratio 3 ratio 5 ratio 7, the price of the cheapest item is the average price of three items. The average price of three items 16,020 rupees. Total price will be 16,020 into 3, that is 48,060 rupees. Now the sum of ratios 3 3x plus 5x plus 7x equal to 15. 15x. अब हमें निकालना है प्राइस ऑफ वन आइटम इक्वल टू 48,060 rupees. 15x equal to 48,060 rupees. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? द टोटल प्राइस ऑफ थ्री आइटम्स, है ना. टोटल प्राइस गिवन है, ठीक है, और इनका रेशियो गिवन है. तो रेशियो जो है वो टोटल प्राइस के इक्वल हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस को इक्वल कर देंगे. तो x इक्वल टू हो जाएगा 48,060 रुपीज डिवाइडेड बाई 15. तो x विल बी x इक्वल टू 3,204. अब हमें निकालना है चीपेस्ट वैल्यू.
तो यहाँ पे चीपेस्ट आइटम कौन सा है? 3x। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 3204, दैट इज 9612। तो चीपेस्ट आइटम का प्राइस क्या हो गया? 9612। ये हमारा आंसर है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 9612। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 10 numbers is 50. The average of the first 4 number is 45. The average of the next 4 numbers is 20% more than the average of the first 4 numbers. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 50. एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 number is 45. The average of next 4 number is 120% more than the average of the first 4th number. तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट 4 numbers 120% of the average of first 4 number. The 9th number is 5 less than the 10th number. इसका मतलब 9th number is 5 less than the 10th number. तो ये हमें दिया है क्वेश्चन में। हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9th नंबर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 10 नंबर्स का जो एवरेज दिया है 50, तो हमारा सम ऑफ 10 नंबर कितना हो जाएगा? 500। The average of the first 4 number is 45. तो ये है अपना टोटल 10 नंबर का एवरेज। फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज कितना दिया है? 45 इंटू 4, टोटल नंबर हो गया 4 नंबर्स का, प्लस नेक्स्ट 4 नंबर का कितना है? 20 मोर है, तो ये आ जाएगा आपका 45 इंटू 120, 216 प्लस 9th नंबर प्लस 10th नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको और हमें निकालना है 9th नंबर। तो 9th नंबर का रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10th नंबर माइनस 5। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो हमें 9th नंबर फाइंड आउट करना है, तो 10th को रिप्लेस कर देते हैं। तो 10th नंबर क्या है हमारा? 9th नंबर प्लस 5 है। इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
500 equal to 180 plus 216 plus ninth number plus ninth plus 5. 500 इक्वल टू हो जाएगा आपका 216 प्लस 5 हो गया आपका 180 प्लस 221 401 प्लस 2 into ninth number 500 minus 401 divided by 2 equal to ninth number. ये आ गया आपका 99/2 equal to 49.5. ये है हमारा नाइन्थ नंबर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 49.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 and 150 that are exactly divisible by 7? तो 7 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 50 और 150 के बीच में। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का। सम ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इक्वल टू n/2 into first term plus लास्ट टर्म। ये है हमारा फॉर्मूला। इसमें हम लोग रखेंगे टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 50 एंड 150 के बीच एग्जैक्टली कितने नंबर्स आएंगे 7 8 जब 56। ठीक है, यहाँ से लेकर हमारे पास टोटल आ जाएगा, लास्ट है 147। ठीक है, तो ये 7 8 जा और ये है 7 2 जा 7 1 जा, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने आ गए 14। ठीक है, टोटल कितने हैं 14। 14 इंटीजर्स यहाँ पे होगा जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसका हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तो 14/2 इंटू फर्स्ट टर्म है हमारा 56 और लास्ट टर्म है 147। 56 प्लस 147 2 7 जा 14। इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू ये आ जाएगा 203। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1421। अब हमें निकालना है एवरेज, तो एवरेज क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 14।
ये आ गया हमारा 101.5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 105.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। What is the average of all three-digit number divisible by 17? तो 17 से डिविजिबल फर्स्ट थ्री डिजिट इज 102। ठीक है, फिर 7 से लास्ट थ्री डिजिट divisible number is that 986. Now हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है जितने भी नंबर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे सारे नंबर्स को क्या करेंगे? सम करेंगे। तो टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं? फर्स्ट टर्म है हमारा 102 और लास्ट टर्म है 986। तो हमें एवरेज निकालना है। एवरेज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 102 प्लस लास्ट नंबर है 986 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 102 प्लस 986 divided by 2, that is 544। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर 544, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज वेट ऑफ P and his three friends is 55 kg. If P is 4 kg more than the average weight of his three friends, what is P's weight? तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले देखेंगे एवरेज वेट ऑफ P and his three friends। तो टोटल कितने हो गए? 4। P plus 3 friends equal to 55 kg, and P is 4 kg more than the average weight of his three friends। total weight of 4 friends equal to 55 into 4, that is
220 kg. Let three friends average weight equal to x. Total weight total weight equal to 3x and p weight equal to x plus 4. Then x plus 4 plus 3x इक्वल टू टोटल वेट कितना है 220. तो ये आ गया आपका 4x प्लस 4 इक्वल टू 220. तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 216. x इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 4. तो x आ गया हमारा 54. p weight equal to x plus 4 that is 54 plus 4. तो p का वेट कितना हो जाएगा 58 kg. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 kg ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. 20 students of a college went to a hotel. 19 of them spent rupees 175 each on their meal and the 20th student spent rupees 19 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them. So यहाँ पे 19 स्टूडेंट का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 19 student spend each 175. तो टोटल कितना हो गया इंटू 90. टोटल spent equal to 3325 and the 20th student spent 19 more than the average of all the 20. Let 20th student spent x. Then 20th student spent 90 rupees more than the average of all the 20. All the 20 means total spent 3325 plus x divided by 20 equal to जितना 20 स्टूडेंट ने
स्पेंड किया उससे कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। इसका मतलब x माइनस 19 इक्वल टू 3025 प्लस x इक्वल टू 20 इंटू x माइनस 19। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3325 प्लस x इक्वल टू 20x माइनस 380। 3325 प्लस 380 इक्वल टू 20x माइनस x। ये आ गया 3705 divided by 19 equal to x, that is 195। तो हमारा x कितना आ गया, 195। टोटल मनी, फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। तो टोटल मनी कितना है हमारा, ये है 19x प्लस x। नाइनटीन इंटू 175 प्लस x, तो ये आ जाएगा आपका 3325 प्लस 195 इक्वल टू 3520। ठीक है। अब इसको हम लोग एक अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमें टोटल 20 स्टूडेंट का एवरेज स्पेंड, 20 स्टूडेंट एवरेज स्पेंड ले लेते हैं y। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20y। अब हमें क्या दिया है, टोटल स्पेंड, यहाँ पे 20y ले लेते हैं, और ये हमारा 19 स्टूडेंट का स्पेंड था 175 प्लस 20 स्टूडेंट का स्पेंड था, जितने 20 स्टूडेंट ने स्पेंड किए हैं उससे ज़्यादा। तो ये है हमारा इक्वेशन। अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू, दैट इज 176। अब हमें टोटल स्पेंड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 इंटू 176 इक्वल टू 3520। तो यहाँ से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं इसका शॉर्टकट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3520, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7,
The average age of three persons P, Q and R is 24. S join the group, the average age become 30. If another person T who is 4 years older than S join the group, then the average age of 5 person is dash year and the age of S. तो हमें एवरेज एज निकालना है 5 पर्सन्स का और एस का एज निकालना है. एवरेज ऑफ 3 पर्सन P, Q and R इक्वल टू 24. टोटल एज हो जाएगा 24 इंटू 3 इक्वल टू 72 ईयर. If A's join the group, the average become 30. अब हमारे पास P प्लस Q प्लस R प्लस S एवरेज एज कितना है 30 इंटू 4. तो ये आ जाएगा 120. अब यहाँ से हम लोग S का क्या निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिलेशन दिया है. इफ अदर पर्सन T हु इज 4 years ओल्डर देन S, तो हम लोग S का यहाँ पे एज निकाल लेते हैं. 120 S का एज क्या हो जाएगा 120 माइनस 72 इक्वल टू 48. ठीक है, तो ये S का एज है. अब T का एज कितना है, T who is 4 years older than S, मतलब 48 प्लस 4. तो T का एज कितना है 52 ईयर. देन द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन. तो एवरेज एज हम लोग निकालेंगे. 4 PQRS का एवरेज एज था 120, फिर T का था 52, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे इसको 5. तो ये आ जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 34.4 ईयर्स. ये हो गया 5 पर्सन्स का एवरेज एज. अब हमें क्या पूछा है, द एज ऑफ एस. तो ये हमने निकाल लिया है, इसका मतलब 34.4 ईयर. तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4. 34.4 एंड 48. तो एस का एज आ गया 48 और एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन इज 34.4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The batting average of 27 innings of a cricket player is 47 runs. His highest score in an innings exceeds his lowest score by 157 runs. If these two innings are excluded, the average score of the remaining 25 innings is 42 runs. Find his highest score in an innings. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 27 innings 47 रन्स. तो टोटल रन कितना हो गया इसका 27 into total run equal to 47 into 27 equal to 1269. उसके बाद क्या दिया है,
His highest score is an innings exceed his lowest score by 157 run. If these two innings are excluded, average score of remaining 25 inning is 42. The average score of the remaining 25 inning. The total run of remaining 25 innings is 42. That is 1050. अब हमें निकालना है highest score in an inning exceed his lowest score by 157. तो ये दो स्कोर के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सम ऑफ remaining two inning equal to 1269 minus 1050, that is 290. Let minimum score be x and maximum score be x plus 157. That is x plus 157 equal to 290. 2x equal to 219 minus 157. X will be 62 divided by 2 equal to 31. Highest score equal to 157 plus 31, that is 188. इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है. ये तो हमारा बेसिक मेथड था जिससे हमने निकाला इसका हाईएस्ट स्कोर 188. ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, 188 हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा. अब हमें क्या दिया हुआ था? एवरेज स्कोर दिया है किसका? 27 इनिंग ऑफ क्रिकेट प्लेयर का, और रिमेनिंग 25 इनिंग इज 42 रन. तो यहाँ पे 47 और ये 42, तो एवरेज में कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 आ रहा है. ठीक है, एवरेज में कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 आ रहा है. और हमारा फर्स्ट 27 इनिंग का स्कोर कितना है? 47. ठीक है, और रिमेनिंग 25 में कितना डिक्रीज हो गया? 5 डिक्रीज हो गया. तो ये आ जाएगा आपका टोटल रन. अगर हम लोग निकालें, टोटल रन अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 47 प्लस 25, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का.
तो ये आ जाएगा 219 रन्स। (47 रन प्लस 47 219। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, लोएस्ट स्कोर 157। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर इक्वल टू 157। तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 47 प्लस, यहाँ पे 1 मिनट, ये हो गया आपका 47 प्लस 47 प्लस 25 इंटू 5, ये है हमारा टोटल स्कोर 219 रन्स। ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट स्कोर। अब हमारे पास डिफरेंस कितना है, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर के बीच में 157। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, हाईएस्ट स्कोर इक्वल टू 157 प्लस लोएस्ट स्कोर। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर इक्वल टू 219 था। हाईएस्ट स्कोर कितना है, 157 प्लस लोएस्ट स्कोर, तो ये आ जाएगा 2h इक्वल टू 219 प्लस 157। तो हमारा हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा 376 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 188 रन्स। ठीक, तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। The average of 28 number is 77. The average of first 14 number is 74 and the average of last 15 number is 84. If the 14th number is excluded, then what is the average of remaining number? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Average of 28 number is 77। तो 28 का एवरेज नंबर है 77, 14 का एवरेज नंबर है 74 और 15 का एवरेज नंबर है 84। तो यहाँ पे कितना का डेविएशन आ रहा है, फर्स्ट 14 नंबर एंड द लास्ट 15 नंबर।
यहाँ से कितना का डेविएशन हो गया, 3 कम, और यहाँ से ये +7, ठीक है। तो 14 3 से कितना हो गया यहाँ पे, 14 इंटू -3 इक्वल टू -28, और +7 इंटू 15, तो ये आ गया 105, ठीक है। अब हमारे पास 14th नंबर का एवरेज निकालना है। इफ द 14th नंबर इज एक्सक्लूडेड, 14th नंबर हमें क्या कर देना है, हटाना है। तो एवरेज नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये आपका 14 3 जा 42 -42, the average of 28 number is 77। तो टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 77 -42 + 105 इक्वल टू 140, ठीक है। ये आ गया हमारा 14th नंबर। क्या आ गया, 14th नंबर। अब हमें क्या करना है, इसमें से एवरेज निकालना है। रिमेनिंग 27 numbers equal to 28 into 77 minus 140 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से 14th नंबर हट जाएगा तो टोटल अब 27 रह जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 74.7। तो ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 74.7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The average of 9 number is 60, that of the first 5 number is 55 and the next 3 is 65. The 9th number is 10 less than the 10th number, then 10th number is the average of 9 number। तो 9 नंबर का एवरेज दिया है 60, 5 फर्स्ट 5 नंबर इज 55 and the next 3 number is 65 and the 10th number is 9th plus 10। तो ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 540, ये आ गया 275 और ये है 195। तो ये हमारा टोटल 9 नंबर्स का एवरेज दिया है 60। तो टोटल 9 नंबर्स का, टोटल 9 नंबर्स कितना हो गया, 540 एंड फर्स्ट 5 नंबर का टोटल नंबर दिया है 275 और नेक्स्ट 3 मतलब 5 + 3 8 हो गया। तो टोटल ये कितना है, 470 और ये है आपका 540। अब इसमें इसको माइनस कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा 70। तो हमारा 9th नंबर कितना आ गया 17। तो 10th नंबर क्या हो जाएगा 70 प्लस 10 दैट इज 80। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 80। ये हमारा 10th नंबर आ गया। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस एवरेज से जो कि अभी हाल ही में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि अभी इसी टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर